All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. In previous class, we have to study about the frequency modulation, definition of frequency modulation, generation of frequency modulation. We have to derive the various expression of frequency modulation as well as phase modulation. This is the expression of frequency modulation, another one expression for phase modulation. Afterward, we have to study it about the various parameter of frequency modulation, such as the frequency deviation, carrier swing, sideband frequency, and modulation index. And also discussed about the difference between the FM and PM with respect to deviation and with respect to modulation index. ये लास्ट क्लास में अपन स्टडी करा था. And also solve the example which is related to angle modulated signal and determine the maximum frequency deviation and the phase deviation. Okay, and also discuss the FM generation by using the Bessel function. The expression of FM is solved out by using the Bessel function, and observe that the FM having the large number of side bands. ये वाला एक्सप्रेशन अपन स्टडी करा था लास्ट क्लास में. The particular expression of FM is expanded by using the mathematical Bessel function. Mathematical Bessel function से expand करने के बाद observe करा, there are the various frequency component. First one component is omega c. Second one term having the component omega c plus omega m and omega c minus omega m. Third one term having the frequency component omega c plus 2 omega m and omega c minus 2 omega m. So ultimately it is having the large number of side bands. This is the first one side band, second one term side band, third term side band, fourth term side bands. ठीक है? So concluded that FM has a large number of side band. Okay. And now today we will discuss the difference between AM and FM. Today we will discuss the difference between AM and FM. So first one, differentiate AM and FM with respect to bandwidth. So in case of AM, bandwidth is defined. Last class में मैं बता चुका हूँ. AM के केस में bandwidth क्या आएगी? Bandwidth equals to 2 into FM. FM is the frequency of modulating signal. Modulating signal की frequency range किस में रहेगी? Audio frequency range में. Audio range में कितना रहेगा? 20 to 20 kilohertz. तो अल्टीमेटली बैंडविड्थ किस रेंज में आएगी? किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में. सो इन केस ऑफ AM द बैंडविड्थ विल बी इन द रेंज ऑफ किलोहर्ट्ज. क्लियर? अब अपन देखते हैं FM के केस में. FM के केस में बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या रहेगा? बैंडविड्थ इक्वल्स टू 2 into डेल प्लस FM, वेयर डेल इज द डेविएशन. डेल इज द डेविएशन. FM इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी. डेल किस रेंज में रहेगा? मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में. FM किस में है? किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में. दोनों को ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंडविड्थ किस रेंज में आएगी? ये मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में. तो फर्स्ट डिफरेंस आएगा, बैंडविड्थ इन केस ऑफ FM इज मच हायर एज कंपेयर टू AM. AM के केस में बैंडविड्थ किस रेंज में? किलोहर्ट्ज रेंज में. किलोहर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10⁻³ में. ठीक है. FM के केस में बैंडविड्थ किस में आएगी? मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में. मेगाहर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10⁻6 में. ठीक है. अब जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था डेविएशन को डिफाइन करने के रेस्पेक्टिव. ये वाला एक एग्जांपल बताया था ना लास्ट क्लास में कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन FM जनरेट करें तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जैसे 20 किलोहर्ट्ज है. ठीक है. पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये इंक्रीज होकर कहाँ जाएगी? 25 किलोहर्ट्ज पे. ठीक है.
नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में रिड्यूस होकर कहाँ गई 15 किलो हर्ट्ज पे। डेविएशन कितने का आया 5 मेगाहर्ट्ज का। तो डेविएशन एक्चुअली किस में है मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में। ठीक है, तो मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में है तो अल्टीमेटली क्या होगा बैंडविड्थ किस में आएगी मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो ये दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन AM एंड FM। FM has the large bandwidth as compared to AM। AM के केस में बैंडविड्थ किस रेंज की रहेगी किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज। FM के केस में बैंडविड्थ किस रेंज में रहेगी मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में। सो फर्स्ट वन डिफरेंस इज दैट in case of FM bandwidth is much higher as compared to AM। फर्स्ट डिफरेंस। अब दूसरा देखें अपन, unlike AM, FM has infinite number of sidebands, so ideally bandwidth required for FM is infinite। अब AM के केस में कितने बैंडविड्थ होंगे दो साइड बैंड। AM के केस में कितने साइड बैंड होते हैं दो साइड बैंड, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। बट FM के केस में क्या है लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड है। जैसे मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था जब अपन बेसेल्स फंक्शन से इसको ओपन करें तो कितने सारे साइड बैंड है ये लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड। पहला ओमेगा सी था, फिर दो साइड बैंड आए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। फिर दोबारा तीसरे पे टर्म में कौन से आए साइड बैंड ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम, फिर ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा। फिर नेक्स्ट टर्म पे फिर दोबारा आए बैंड ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम। तो अल्टीमेटली क्या है लार्ज नंबर ऑफ बैंड बढ़ते जा रहे हैं। ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड। AM के केस में कितने साइड बैंड थे दो साइड बैंड, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड। बट इन केस ऑफ FM देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड, लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड। ठीक है, और दूसरा क्या है कि FM के केस में it is having the large number of side band, but in case of ideally अगर अपन केस कंसीडर करें प्रैक्टिकली तो लार्ज नंबर रहेंगे, आइडियल केस कंसीडर करें तो देयर विल बी द इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड। ये डॉट 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 होते जाएगा, डॉट 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 दैट मींस अप टू इनफाइनाइट। सो FM हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड, सो आइडियली बैंडविड्थ फॉर FM कितनी होगी, अब जितने ज्यादा साइड बैंड रहेंगे उतनी ज्यादा इसकी बैंडविड्थ आएगी। तो FM की आइडियल केस में बैंडविड्थ कितनी हो गई इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकल केस में क्या रहेगी मच हायर 10⁻⁶ मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में। इज इट क्लियर। जबकि AM के केस में कितने साइड बैंड है दो साइड बैंड है, तो साइड बैंड के रेस्पेक्टिव अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं AM और FM को। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्लियर करें, कंसीडर करें। थर्ड पॉइंट में अपन देखें द JN ऑफ MF यानी कोफिशिएंट है इवेंचुअली डिक्रीजेस एज इंक्रीजेस। ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे, कल भी देखा था, जैसे ये कांस्टेंट है ना, ये J0 MF, J1 MF, J2 MF, J3 MF, तो इनके ये एक्चुअली क्या है एम्पलीट्यूड है, इन साइड बैंड्स के क्या है ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जाएगा। जैसे n की वैल्यू जैसे 1 2 n की वैल्यू 1 के लिए, फिर n की वैल्यू 2 के लिए, 3 4 5 6 करते हैं, तो अल्टीमेटली इसके एम्पलीट्यूड को क्या होते जाना है डिक्रीज होते जाना है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होंगे दैट मींस द JNF ऑफ J ऑफ दिस, ये कोफिशिएंट या एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीज जाएगी, जैसे n की वैल्यू अपन इंक्रीज करते हैं। सो व्हेन द n इज इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ JN ऑफ MF विल बी डिक्रीजेस व्हेन n इज इंक्रीजेस। n 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीज करेंगे तो साइड बैंड के एम्पलीट्यूड क्या होते जाएंगे डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन FM बेसिकली the modulation index in FM basically determine the how many sidebands are present. In case of AM there are the two sidebands, but in case of FM there are the large number of sidebands. So modulation index is determined as according to the number of sideband. अब number of sideband FM में क्या large है तो modulation index भी क्या होगा लार्ज होगा एज कंपेयर टू AM, एज कंपेयर टू AM के कंपैरिजन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स FM में क्या होगा लार्ज होगा, हायर होगा, बिकॉज ऑफ दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ साइड बैंड, और नंबर ऑफ साइड बैंड FM में क्या होंगे लार्ज नंबर।
तो साइड बैंड ज्यादा है, बैंडविड्थ भी ज्यादा है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एएम। क्लियर? नेक्स्ट अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखो, in AM has M increases and sideband power also increases and the total power increases. That means as we know that ये एक्सप्रेशन अपन ने देखा है PT equals to PC 1 plus M square by 2। इसको यहाँ देखें जैसे अपन कि PT equals to PC 1 plus M square by 2, ये AM वाला केस है, AM। ठीक है? एफएम वाले केस में अपन ऑब्जर्व करने के लिए अपन जैसे जैसे अपन ने एएम के लिए अपन ने देखा था, एएम के जब एग्जांपल सॉल्व करें तो जैसे पावर कैलकुलेट करें अपन, कोई सिग्नल है 10 cos 10 ओमेगा टी, इसकी पावर कैलकुलेट करें तो पावर कैसे आएगी, जो इसका मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और कोसाइन या साइन वाली टर्म का अपन पावर कैलकुलेट करें तो कितना आता है 1/2। तो 10 का स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये अपन ये में देख चुके हैं इस तरह के एग्जांपल। अब मुझे तुम ये बताओ कि एफएम का जैसे एक्सप्रेशन है, एफएम का अपन ने शुरू से एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है फर्स्ट क्लास से कि एफएम इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एम ऑफ टी डी टी, वेयर ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल बीसी, ओमेगा सी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, के एफ क्या है, कांस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम ऑफ टी क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, अब ए तो क्या है कांस्टेंट आ गया और बाकी क्या है कॉस वाली टर्म है, रिमेनिंग क्या है ये कॉस वाली टर्म है। तो कॉस वाली टर्म का अगर एवरेज वैल्यू या पावर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 1/2। तो एम्पलीट्यूड का तो स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, और ए इज इक्वल टू वीसी तो वीसी स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? अब कंक्लूजन क्या निकला कि एफएम के केस में पावर क्या है कांस्टेंट है, और किस पे डिपेंड कर रही है वो, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। बट इन केस ऑफ एएम टोटल पावर इज डिपेंड अपॉन पीसी एज वेल एज एम। मतलब एएम के केस में टोटल पावर पीसी पे भी डिपेंड करती है और दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे, एम पे। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे तो पीटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुई बात? जबकि एफएम के केस में क्या रहेगी, पावर कांस्टेंट रहेगी। पावर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उस वीसी जो है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल क्या है, कांस्टेंट है। वीसी कांस्टेंट है तो पावर भी कांस्टेंट होगी एफएम में। जबकि एएम के केस में क्या है, इट इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इसको अपन के एग्जांपल से समझें कि जैसे जयपुर का एफएम है तो जयपुर के एफएम को अपन कहां तक सुन सकते हैं, दूर दूर तक या मैक्सिमम अजमेर तक। भीलवाड़ा में तो अपन नहीं सुन सकते, उसके नहीं सुन सकते, तो वो क्या हो गया, रेंज लिमिटेड। मतलब एफएम है उसको अपन हर जगह नहीं सुन सकते, एफएम एक पर्टिकुलर रेंज तक रहेगा। और रेंज तक क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पावर क्या है, कांस्टेंट है। पावर क्या है, कांस्टेंट है, इसको अपन इंक्रीज नहीं कर सकते। जबकि अपन एएम के केस में देखें, जो विविध भारती है या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग है, उसको अपन गांव तक भी सुन सकते हैं, विलेजेस में भी सुन सकते हैं ना अपन एएम को, एफएम नहीं सुन सकते पर एएम पॉसिबल है। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग या विविध भारती जो भी इस एएम से रिलेटेड है, उसको अपन लार्ज रेंज तक, लार्ज वैल्यू तक अपन इसको सुन सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट पावर इज वेरिएबल, पावर इज वेरिएबल एंड इट इज डिपेंड अपॉन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को आप इंक्रीज कर दो, जैसे 10 20 90% कर दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। पावर इंक्रीज होगी तो रेंज इंक्रीज हो जाएगी, तो रेंज इंक्रीज होगी तो लार्ज डिस्टेंस तक अपन उसको सुन सकते हैं। जबकि एफएम के केस में क्या, पावर कांस्टेंट है, तो लार्ज डिस्टेंस तक अपन नहीं सुन सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? So total power in case of FM it is constant, that is equal to VC square by 2, but in case of AM power is variable and depends upon modulation index। modulation index को अपन increase करेंगे total power increase हो जाएगी। Is it clear? Okay. Next point देखें अपन। Next point क्या है, in AM only sideband power is useful, but in case of FM total transmitted power is useful। ठीक है,
AM के केस में अपन क्या करते हैं, केवल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, तो साइड बैंड पावर इज यूजफुल, बट इन केस ऑफ FM टोटल ट्रांसमिटेड पावर इज यूजफुल. In case, next point, in case of FM, it is possible to carrier component to completely disappear for particular value of modulation index. Modulation index की particular value लेके अपन उसको क्या कर सकते हैं, disappear कर सकते हैं. और disappear किस values पर रहेगा, ये eigen values पर. eigen values का मतलब क्या है कि जैसे ये completely ये वाले जो point है, ये वाला point है, इस पे value क्या है, ये 0 है, तो 0 वाले केस में क्या हो गया, carrier component totally disappear, और these values are known as the eigen values. Okay. अब एक और इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, in case of FM there is no variation in amplitude, so it is provide the much more noise immunity. इसका मीनिंग क्या है, जैसे अपन AM में देखें, AM में क्या वेरिएबल होगा, एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी. FM के केस में क्या रहेगा, वेरिएबल क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड. तो कंक्लूजन क्या निकला कि FM के केस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन किसमें, फ्रीक्वेंसी में. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जैसे डेफिनेशन है FM की कि फ्रीक्वेंसी इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट. अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका एक एडवांटेज है, एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो डिसएडवांटेज भी है कि उसकी रेंज कम है, पावर कम है, बट एक एडवांटेज भी है. एडवांटेज क्या है कि अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो नॉइज इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. So in case of FM, it is provide the much more noise immunity as compared to AM. FM में क्या रहेगी, much more noise immunity as compared to AM. इसीलिए अपन क्या है, जैसे कोई जयपुर का FM है तो उसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी होती है, क्वालिटी कितनी है, डिस्टेंस कम है, भाई जयपुर का है तो दूर दूर तक सुन सकते हैं, रेंज कम है, पर क्वालिटी कितनी होती है, अच्छी रहती है. AM के केस में क्या डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहेगा. So FM having the much more noise immunity and having the more quality as compared to AM for signal transmission. Clear हुआ ये? So ये भी एक difference है AM और FM में. FM is provide the much more noise immunity as compared to AM. तो ये इसके क्या रहे basic differences between AM and FM. ये भी एग्जाम में कई बार पुट ऑन होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द AM एंड FM. और नेक्स्ट है फिर FM जनरेशन. अब नेक्स्ट अपन ये वाक्य अपन नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे कि FM जनरेशन एंड FM जनरेशन, दैट मींस FM मॉड्यूलेटर. FM को डीमॉड्यूलेट कहाँ करेंगे, रिसीवर पे. FM का मॉड्यूलेशन कहाँ करेंगे, ट्रांसमीटर पे. मॉड्यूलेशन वाला प्रोसेस कहाँ होगा, ट्रांसमीटर सेक्शन पे. डीमॉड्यूलेशन वाला प्रोसेस कहाँ होगा, रिसीवर पे. सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे FM मॉड्यूलेटर, उसके बाद FM डीमॉड्यूलेटर. ओके. अभी आज की क्लास में कोई डाउट्स हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो. आज की क्लास में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो. बाकी मैंने FM के नोट्स हैं वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं. आज का जो वीडियो लेक्चर है ये कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूँ. तो नोट्स की स्टडी करो और इस वीडियो को स्टडी करो, इसको पढ़ो, इसको सुनो, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कशन करो. चलो मैं अब अटेंडेंस लेता हूँ. अक्षता माहेश्वरी, प्रेजेंट सर. अक्षता पारा सर, प्रेजेंट सर. अनीशा पांडे, प्रेजेंट सर. अंजलि ओझा, प्रेजेंट सर. हिमांशु, प्रेजेंट सर. प्राची, प्रेजेंट सर. वगीशा, प्रेजेंट सर. ओके. ठीक है, इसको पढ़ो और कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं. ओके, थैंक यू.